संडे की सबसे बड़ी स्टोरी में आज हम आपको चीन पाकिस्तान पर भारत का सबसे बड़ा बयान सुनवाएंगे। आप इसे दो दुश्मन देशों पर 2021 में दिया गया भारत का सबसे विस्फोटक बयान भी मान सकते हैं। चीन पाकिस्तान को लेकर आगाह करती ये धमाकेदार बात सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने जी न्यूज के सहयोगी चैनल वियॉन से कही। इस इंटरव्यू की खास बात यह रही कि उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी की चुनौतियों के बीच इस बार करगिल को लेकर भी अलार्म बजाया है। 3, 2, signaling for 5 minutes. करगिल से लेकर लद्दाख तक चीन से लेकर पाकिस्तान तक तो दुश्मनों की हर साजिश पर जनरल का धमाका एक्सक्लूसिव। General Rawat, welcome to Vion, sir. Thank you. It's been wonderful. जी न्यूज के सहयोगी चैनल वियॉन ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। जनरल बिपिन रावत ने इस विस्फोटक इंटरव्यू में सबसे पहले चीन की चर्चा की और पूर्वी लद्दाख में हाल ही में किए गए चीन की वायुसेना के युद्धाभ्यास पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए दुश्मन को घेरा। Recently, there were also reports, sir, that the Chinese military has conducted exercises near eastern Ladakh. What's your assessment of the situation on the border right now? And are we aiming to achieve status quo ante, or is it too much to ask for right now? We are monitoring the situation very carefully, but exercise is a very regular feature, and I think it should not be a cause for concern. But at the same time, we should not lower our guard, and we have to continuously monitoring the activities of Chinese and make sure that they do not come to the areas which have been vacated earlier. Yes, we wish to achieve status quo ante, and our bottom line is that we want to revert to April 2020 situation. And this is what has been communicated to the Chinese. So the ultimate aim is to ensure that we revert to status quo ante. जनरल बिपिन रावत से इसके बाद एलएसी पर भारत और चीन के सैनिकों के डिसएंगेजमेंट को लेकर सवाल पूछे गए तो उन्होंने हर एक एरिया से सैनिकों के पीछे हटने को लेकर विस्तृत जानकारी दी और ये भी कहा कि हमें चीन के साथ अचानक से किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। We've had some very good progress made in the area of Pangong Tso, where the north and south banks have now been vacated. In the other areas, it is happening in a transitory manner. There are always suspicions on both sides. While we should not expect very quick progress, because I mentioned there will be suspicions, at the same time, we have to ensure and not allow our guard to be lowered. We cannot take things for granted. Therefore, we have to move in a very cautious manner. Second is integration amongst the services. जनरल रावत से चीन को लेकर जब बात पूरी हो गई तो फिर पाकिस्तान का नंबर भी लगा और उनसे पाकिस्तान के साथ फरवरी में हुए युद्ध विराम को लेकर सीधा सवाल हुआ। सवाल ये था कि क्या युद्ध विराम के बाद पाकिस्तान की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। तो सुनिए जनरल रावत ने जवाब में क्या कहा। They want a genuine ceasefire. They must ceasefire on all fronts. Ceasefire on the borders, ensure no support to terrorism in the hinterland, make sure that these warlike stores are not delivered, and if this continues, only then we should accept the kind of ceasefire and have faith in the ceasefire. सवाल उठता है कि जनरल रावत ने सीजफायर को लेकर पाकिस्तान के आतंकवाद पर इतना जोर क्यों दिया। क्या बॉर्डर पर घुसपैठ के अलावा आतंकवाद का कुछ कनेक्शन करगिल से भी हो सकता है। जनरल रावत ने इस आशंका पर अपनी कौन सी बात सामने रखी। Terrorists somehow at times, go out of control of the establishment on that side, and they could actually escalate the situation. And like we had the situation in Kargil, if that kind of situation happens again, then even the western neighbor could become a challenge. यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि जनरल बिपिन रावत एलएसी के साथ साथ करगिल पर भी इतना फोकस
क्यों हो गए? क्या उन्हें ये लगता है कि भारत के खिलाफ दो दुश्मन देश मिलकर दो मोर्चे पर एक साथ लड़ाई छेड़ सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो फिर भारत की आगे की रणनीति क्या होगी? दोनों देशों से भारत एक साथ कैसे निपटेगा? कौन सा दुश्मन सबसे बड़ी चुनौती बनेगा? जनरल रावत ने इसके जवाब में फिर से चीन की बात की। Have a larger neighbor which has got a better force, better technology. So you obviously prepare for a larger neighbor. यानी जनरल बिपिन रावत के मुताबिक आज की तारीख में भारत की सुरक्षा के मद्देनजर पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा खतरा चीन बन चुका है और चीन को लेकर हमारी सेनाओं को सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। वैसे करगिल की जहां तक बात है तो 1999 में पाकिस्तान को भारत कड़ा सबक सिखा चुका है। तब ऊंची चोटियों पर बैठे दुश्मनों पर बोफोर्स ने तबाही मचाई थी। पाकिस्तान ये जंग बुरी तरह से हारा था और अब तो इन 22 वर्षों में भारत की सैन्य शक्ति भी कई गुना बढ़ चुकी है। LAC हो या LOC, करगिल हो या फिर लद्दाख, टू फ्रंट वॉर की स्थिति बनी तो चीन और पाकिस्तान याद रखें कि उन पर सिर्फ बोफोर्स ही नहीं गरजेगी, बल्कि इस बार आसमान से लड़ाकू विमान रफाल भी बम वर्षा करेगा। और टू फ्रंट वॉर की लड़ाई में भी चीन पाकिस्तान को भारत कभी न भूलने वाला जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान को चीन आर्थिक मदद के साथ साथ सैन्य मदद भी पहुंचाता रहा है। लद्दाख के साथ साथ कारगिल को लेकर जनरल रावत की आशंका की ये एक बड़ी वजह है। इसलिए टू फ्रंट वॉर की स्थिति को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन चीन और पाकिस्तान अगर भारत के खिलाफ ऐसा कोई प्लान बना रहे हैं तो उन्हें करगिल युद्ध में भारत की विजय गाथा याद कर लेनी चाहिए। 3 मई 1999 से करगिल युद्ध शुरू हुआ था। 60 दिन से ज्यादा चला था करगिल युद्ध, यानी करीब करीब 2 महीना। पाकिस्तानी सेना ने करगिल में घुसपैठ की थी। भारत ने 700 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मारा था। लेजर गाइडेड बमों से मिराज ने दुश्मनों पर हमला किया था। पाकिस्तान को हराने में बोफोर्स की विशेष भूमिका रही थी। 14 जुलाई 1999 को ऑपरेशन विजय की कामयाबी का ऐलान किया गया था और 26 जुलाई 1999 को कारगिल की हर चोटी पर तिरंगा शान से लहराया था। रमाई संडे की दूसरी बड़ी स्टोरी 2 दिन बाद होने जा रही विश्व की सबसे हिस्टोरिकल मीटिंग, ऐतिहासिक बैठक से जुड़ी है। तो दुश्मन देशों के राष्ट्राध्यक्षों की ये 1-to-1 मुलाकात 16 जून को स्विट्जरलैंड में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक दूसरे के आमने सामने होंगे, मिल रहे होंगे और दुनिया भर की निगाहें उन तस्वीरों पर टिकी होंगी। दोनों ही सुपर पावर, इनकी मुलाकात पर भारत की भी नजर, खास तौर पर चीन को लेकर, वो भी इस सवाल के साथ क्या इस बैठक से चीन को घेरने का सुपर पावर प्लान BPM तैयार हो पाएगा। अब ये BPM क्या है, इस रिपोर्ट में चला। 2021 की सबसे ऐतिहासिक घटना। 2 दिन बाद 2 दुश्मनों की मुलाकात। बाइडेन पुतिन मिलेंगे, क्या बात करेंगे? क्या इस बैठक में तैयार होगा चीन को घेरने का प्लान BPM? प्लान BPM मतलब बाइडेन, पुतिन और मोदी, ये तीनों नेता चीन के मुद्दे पर अगर साथ आ जाएं तो चीन को घेरना और आसान हो जाएगा। लेकिन क्या ये BPM प्लान बाइडेन पुतिन की मुलाकात में तैयार हो पाएगा? हम इस सवाल पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले इंटरनेशनल मीडिया से आ रही ये सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। तारीख 16 जून, जगह जिनेवा, स्विट्जरलैंड। 16 जून को स्विट्जरलैंड में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से खास मुलाकात करेंगे। G7 की मीटिंग के फौरन बाद जिनेवा में ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैठक होगी। दोनों देशों के बीच तनाव कम करने वाली इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी। भारत के लिए भी 2 सुपर पावर की ये 1-to-1 मुलाकात कई मायनों में
खास रहेगी। वो एक बहुत ही वेलकम साइन है। उससे ज़्यादा इतनी एक्सपेक्टेशन तो नहीं है जो भाई बहुत जो दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते हैं वो अच्छी तरह ठीक हो पाएंगे, क्योंकि मुश्किलें बहुत हैं। ये पहली मुलाकात होगी जो राष्ट्रपति बाइडेन के चुने जाने के और अपनी शपथ ग्रहण करने के बाद। परंतु अगर कुछ प्रकार से सामान्य संबंध हो जाते हैं रूस और अमेरिका के बीच में, तो जिसे कहा जाए जो अमेरिका को थोड़ा सा फ्री हैंड मिल जाएगा। इस मुलाकात की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि बैठक से ठीक पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी टीवी चैनल NBC न्यूज को इंटरव्यू दिया, जिसमें पुतिन ने उस सवाल पर कोई आक्रामक जवाब नहीं दिया जिसको लेकर हाल ही में दोनों देशों के बीच बवंडर खड़ा हो गया था। पुतिन से इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि क्या वो एक हत्यारे हैं। पुतिन ने इस सवाल को टालते हुए कहा कि उन पर इस तरह के हमले होते रहते हैं। ये सवाल इसलिए पूछा गया था क्योंकि कुछ महीने पहले जब जो बाइडेन से सवाल पूछा गया कि क्या वो पुतिन को एक हत्यारा मानते हैं, तो उन्होंने हिचकते हुए कहा था कि हाँ, वो ऐसा मानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के इसी बयान पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका से रूस के राजदूत को वापस बुला लिया था और रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजदूत से वॉशिंगटन वापस जाने के लिए कह दिया था। इसी दौरान अमेरिका ने रूस पर कड़े प्रतिबंध भी लगा दिए थे। लेकिन 16 जून को पुतिन बाइडेन से मुलाकात करने जा रहे हैं, तो ऐसे में वो बाइडेन के हत्यारे वाले बयान को तूल देना नहीं चाहते। शायद इसीलिए पुतिन ने मामले को ठंडा करने की कोशिश की और अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन की तुलना पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करते हुए उन्हें शुद्ध राजनीतिज्ञ कहा और ये उम्मीद भी जताई कि नए राष्ट्रपति रूस के खिलाफ कोई उकसावे वाला कदम नहीं उठाएंगे। वैसे अमेरिका ने इस मुलाकात का एजेंडा पहले ही साफ कर दिया है। वॉशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित एक लेख में बाइडेन ने कहा कि वो रूसी राष्ट्रपति से मानवाधिकारों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या इस मुलाकात में दोनों नेता चीन पर भी कोई चर्चा करेंगे? अमेरिकी मैगजीन फॉरेन पॉलिसी में इसी मुलाकात को लेकर एक लेख छपा है जिसमें दावा किया गया है कि भारत इस मुलाकात से बेहद खुश है, क्योंकि भारत को उम्मीद है कि इस बैठक से दोनों नेताओं के साथ चलने का रास्ता साफ हो सकता है और अमेरिका रूस के बीच अच्छे रिश्तों से भारत के लिए आक्रामक चीन को संतुलित करना आसान हो जाएगा। जो चीन के साथ कैसे डील करना चाहता है वो उसके ऊपर और ज़्यादा ध्यान दे पाएगा, और पाकिस्तान और चीन के साथ जैसे रूस के संबंध अच्छे हो रहे हैं तो वो उसमें थोड़ी सी ढील पड़ जाएगी। तो इसीलिए अगर वो इसको आगे ले जाना चाहते हैं और कुछ ऐसे मौके मिलते हैं तो वो कर पाएंगे, परंतु इनसे ज़्यादा इतना एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए। और दोनों साइड ने, बाइडेन ने और पुतिन ने, दोनों ने कहा है जो इतना ज़्यादा इसमें कोई ब्रेक थ्रू नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए इस समय। आपको समझना चाहिए कि ट्रंप की तरह बाइडेन भी चीन पर लगातार शिकंजा कस रहे हैं। G7 की बैठक में चीन को लेकर रणनीति बनाई गई है, लेकिन रूस चीन के खिलाफ हर उठाए गए एक्शन में रोड़ा साबित हो सकता है और अगर बाइडेन पुतिन को साथ लेते हैं तो चीन पर बहुत हद तक बड़ी कार्रवाई संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मई संडे की तीसरी बड़ी स्टोरी रोहिंग्या साजिश से जुड़ी है। इस बार रोहिंग्या साजिश के तार 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जुड़ रहे हैं। आप ये समझिए कि जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक सीमा पार से 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव यानी योगी आदित्यनाथ के चुनाव पर असर डालने की साजिश की जा रही है। इस खुलासे के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस, देश की सुरक्षा एजेंसियां सभी चौकन्ने हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से 11 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस की पैनी नजर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अवैध रूप से रह रहे, गैर कानूनी कामों में लगे हुए उन रोहिंग्या मुसलमानों पर जम गई है जो बॉर्डर से घुसपैठ करके उत्तर प्रदेश में
अपनी जड़ों को गहरा कर रहे हैं। दो 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमानों की मौजूदगी कई शंकाओं को बढ़ा रही है। खुफिया जानकारी के मुताबिक यूपी इलेक्शन से पहले रोहिंग्या मुसलमानों को प्रदेश में बसाकर बड़ी साजिश रचने की तैयारी की गई है। खबर यह भी है कि साजिश का यह पूरा ताना बाना सीमा पार से बुना जा रहा है। यूपी में गिरफ्तार किए गए रोहिंग्या मुसलमानों से पूछताछ के बाद जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक रोहिंग्या मुसलमानों को वोट बैंक की तरह तैयार किया जा रहा है। वहीं रोहिंग्या मुसलमानों के जरिए विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की साजिश की भी जांच की जा रही है। एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर रोहिंग्या के घुसपैठ के पीछे असली वजह क्या है? क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सीमा पार से कोई साजिश रची जा रही है? क्योंकि अचानक जिस तरह से रोहिंग्या घुसपैठ की सक्रियता बढ़ी है, उससे ये सवाल उठना लाजमी है। बहरहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस को केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से भी रोहिंग्या घुसपैठियों की साजिश की जानकारी मिली थी, जिसके बाद प्रदेश में रोहिंग्या मुसलमानों पर कार्रवाई शुरू की गई और इसी का नतीजा है कुछ ही दिनों में उत्तर प्रदेश से 11 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे कोई भी व्यक्ति जो कि गैर कानूनी तरीके से प्रदेश में प्रवास कर रहे हैं, उन पे लगातार सतत निगरानी की जाती है और जैसे बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्याज हैं, इनके लिए अन्य जो हमारी केंद्रीय एजेंसी हैं उनसे भी हमें इनपुट मिलता रहता है और हमारी अलग से जो स्पेशल एजेंसीज़ हैं अपने स्टेट की, वो भी लगातार इस संबंध में इंटेलिजेंस कलेक्शन करती है और उसके आधार पर ही कार्रवाई की जाती है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या मुसलमानों पर शिकंजा कसने की शुरुआत कहां से हुई। एटीएस ने इसी साल 6 जनवरी को संत कबीर नगर जिले के समर्थन गांव में बसे रोहिंग्या अजीजुल्लाह को गिरफ्तार किया। इसके बाद 28 फरवरी को अलीगढ़ के कमेला रोड पर रह रहे मोहम्मद फारूक और हसन को पकड़ा गया। फिर फारूक के भाई शाहिद को 1 मार्च को उन्नाव से पकड़ा गया। इन सभी की गिरफ्तारी के बाद एटीएस को प्रदेश में छिप कर रह रहे कई रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में जानकारी मिली, जिसके बाद रोहिंग्या मुसलमानों पर प्रदेश में शिकंजा कसने की शुरुआत की गई। संडे की चौथी बड़ी स्टोरी मुंबई से आई है। मुंबई में शिवसेना के विधायक की गुंडागर्दी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। इन सवालों को ये तस्वीरें जन्म दे रही हैं कि क्या राज्य में पार्टी की सरकार होने से शिवसेना के विधायक को गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल गया है। मुंबई से आए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तेज बारिश के बाद सड़क पर पानी भर गया है, वाटर लॉगिंग जैसी स्थिति है। सड़क के एक तरफ कुछ लोग खड़े दिख रहे हैं। इनमें से सफेद शर्ट पहने ये व्यक्ति भीड़ में ही शामिल दूसरे शख्स को कुछ इशारा करता है। इसके बाद वो दूसरा व्यक्ति कुछ कदम चलकर नीचे जमीन पर बैठ जाता है। सफेद शर्ट वाला व्यक्ति जमीन पर बैठे व्यक्ति को डांटता है, फटकारता है। इतने में भीड़ से एक व्यक्ति और निकलता है और जमीन पर बैठे व्यक्ति को धक्का दे देता है। फिर सफेद शर्ट पहने व्यक्ति पास में कूड़ा उठाने वाले लोगों से कुछ कहता है। इसके बाद जमीन पर बैठे व्यक्ति के ऊपर कूड़ा डालने का काम शुरू हो जाता है। सड़क के किनारे नाली का जितना भी कचरा होता है वो बारी बारी से उस व्यक्ति पर डाल दिया जाता है। जमीन पर बैठा ये शख्स कौन है और उस पर कूड़ा डालने का आदेश किसने दिया? ये जानकारी वाकई हैरान करने वाली है। असल में ये पूरा मामला मुंबई के कांदीवली से शिवसेना विधायक दिलीप लांडे की गुंडागर्दी से जुड़ा है। पता चला है कि पीड़ित शख्स एक ठेकेदार है जिसे कांदीवली में सफाई का काम दिया गया था, लेकिन विधायक दिलीप लांडे का आरोप है कि ठेकेदार ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया और इसीलिए उन्होंने उसे सबक सिखाया। ठेकेदार ने ये काम नहीं किया, इसलिए मैं खुद रास्ते पे उतर के
ये गटर साफ करने का काम कर रहा हूँ। जिसका जिम्मेदारी है वो ठेकेदार ने ये काम किया नहीं है, इसलिए ठेकेदार को पकड़ के यहाँ लाया हूँ। बीजेपी ने इस गुंडागर्दी पर शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ठेकेदार से शिवसेना विधायक दिलीप लांडे का झगड़ा कूड़े को लेकर नहीं था, बल्कि बीएमसी के भ्रष्टाचार में परसेंटेज को लेकर था। बीजेपी ने इसी के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी घेरा। वास्तव में गार्बेज का झगड़ा नहीं है, परसेंटेज का झगड़ा है। उद्धव ठाकरे जी और उसकी शिवसेना और माफिया कॉन्ट्रैक्टर, ये दोनों की सिंडिकेट है। पैसे के हिसाब में कुछ डिफरेंस हुआ तो उसी कचरे के नाले में शिवसेना के विधायक कॉन्ट्रैक्टर को डुबाते हैं। उद्धव ठाकरे जी को शर्म आनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन बीएमसी पर किसका कब्जा है तो जवाब मिलेगा शिवसेना का है। गुंडागर्दी करने वाले विधायक किस पार्टी से हैं तो जवाब मिलेगा शिवसेना से हैं। महाराष्ट्र में सरकार किसकी है तो जवाब मिलेगा शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की महाविकास आघाड़ी की सरकार है। मुख्यमंत्री कौन है तो जवाब मिलेगा शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हैं। ऐसे में सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि क्या इसी बिना पर शिवसेना के एक विधायक को गुंडागर्दी का लाइसेंस मिल जाता है, कानून को हाथ में लेने का अधिकार मिल जाता है? शिवसेना के विधायक की गुंडागर्दी पर आखिर महाराष्ट्र सरकार चुप क्यों है? शिवसेना विधायक दिलीप लांडे पर अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मुंबई से आई एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे। मुंबई की बारिश में आप अपना तो ख्याल रखिएगा ही, अपनी कार का भी ख्याल रखिएगा। क्यों कह रहे हैं? तस्वीर खुद आपको इसका जवाब दे रही है। भारी बारिश हुई, जगह जगह सड़क धंस गई, पार्किंग में खड़ी पूरी कार किस तरह से समा गई पानी में, वो आपके स्क्रीन पर। पूरी गाड़ी ने जल समाधि ले ली। आज जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वीडियो है मुंबई के घाटकोपर इलाके का। एक प्राइवेट सोसाइटी जहां पर कुएं का आधा भाग सीमेंटेड प्लास्टर से कवर कर दिया गया था, ढक दिया गया था, और इसके बाद सोसाइटी के लोग अपनी गाड़ियां वहां पार्क करने लगे। लेकिन रविवार को तेज बारिश हुई और इसी दौरान यहां खड़ी एक कार इस कुएं में डूबने लगी और पूरी तरह जलमग्न हो गई। राहत की बात ये रही, किसी की मौत या कोई घायल नहीं हुआ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.